Hello dear student of class 12th, welcome to you in online classes of Dr. Shiv Sai Singh Gurukul International Academy. Dear student, I myself Mr. R.S. Dove, your English teacher. So today I will make you to aware of about the syllabus of class 12. Due to COVID-19, CBSE has reduced 30% of syllabus of your course. So first of all, I will introduce you about the deleted syllabus. So first you will note it. All of you present in the class or not? All of you present in the class, visiting the video. See, reduced syllabus. क्लास 12th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, ENGLISS इंग्लिश. रिड्यूस्ड सिलेबस. फर्स्ट थिंग डियर स्टूडेंट, रीडिंग स्किल्स. In reading skills, chapter note making and summarizing is deleted from your syllabus. Next, literature. Two books are prescribed in literature. Your first book is FLAMINGO Flamingo, and your second book is BISTAS Vistas. And third section, this is the first, this is second, third section आपका होगा राइटिंग स्किल. In writing skill, deleted chapter is poster making. In Flamingo, following chapters are deleted. FOLLOWING, following CHAPTERS chapters are reduced. REDUCED reduced. चैप्टर फर्स्ट आपका है ऑनगोइंग प्लेसेस. चैप्टर फर्स्ट आपका चैप्टर फर्स्ट आपका है पोएट्स एंड पैनकेक्स. CAKES. चैप्टर सेकेंड आपका है द इंटरव्यू. चैप्टर थर्ड आपका है गोइंग प्लेसेस. PLACES. पोएम आपकी है स्टैंड. नेक्स्ट बुक आपकी विस्टाज है. सेकेंड बुक्स BISTAS. विस्टाज में जो चैप्टर आपके डिलीट है द टाइगर किंग. फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग, TIGERKING, द टाइगर किंग. सेकेंड थिंग्स आपका जो है
journey to the end of the earth, journey, journey to the end of the earth, end of the earth. Memories of childhood. Next, chapter number 3, MEMORIES, memories of CHILDHOOD, childhood. So these chapters are deleted from your literature books. And next things, राइटिंग में पोस्टर मेकिंग्स, राइटिंग नंबर 3 आपका है। राइटिंग स्किल में फर्स्ट है पोस्टर मेकिंग, आपका डिलीटेड है डियर स्टूडेंट। बिजनेस लेटर, VUISNESSLETTERS, बिजनेस लेटर्स। इंक्वायरीज, रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिपोर्ट्स। स्पीच एंड डिबेट विल बी आल्सो डिलीटेड, SPEECH, speech and DEBATE, debate, also reduced, REDUCED, reduced. So these are the your syllabus. And now I will tell you about the first things of skill writing. वो नहीं सर, dear student, I will start your first book Flamingo, 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 and in it the second chapter CHAPTER, second chapter. The topic of the second chapter is Lost Spring, SPRING, Lost Spring. और आपके राइटर हैं, अथर हैं, AUTHORS, अथर्स आपके हैं अनीस जंग, ANEES JUNG, अनीस जंग. So I will tell you about this lesson. First I will tell you about the topic of the lesson, then about the author, and then summary and explanation, and then question answer. So you will study this lesson in 4 parts. फर्स्ट पार्ट आपका होगा अबाउट द अथर, ABOUT, अबाउट द AUTHOR, अथर. सेकेंड थिंग्स आपका सेकेंड टॉपिक्स होगा अबाउट द टॉपिक, ABOUT, अबाउट द TOPICS. टॉपिक्स क्या है आपका, टॉपिक के बारे में कि राइटर ने आखिर इसको टॉपिक्स को क्यों दिया, लास्ट स्प्रिंग ही नाम क्यों दिया. और थर्ड थिंग्स हम आपको बताएंगे एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन. नंबर 4 आपका होगा समरी ऑफ द लेसन, SUMMARY, समरी ऑफ द LESSON. फिफ्थ आपका फिफ्थ पार्ट में आपका होगा क्वेश्चन एंड आंसर. सो दिस लेसन विल बी, I will teach you this lesson in divided into 5th part. First part आपका about the authors. What do you know about the authors? Who was Anis Jung? Why she has written about the topic Lost Springs? So dear student, Anis Jung was born in 1964 in Rourkela, and she was a prominent writer. Her essays were hard feeling to the common people of the society. That's why the writer here described the Lost Spring as, जैसा कि आप टॉपिक को ही देखते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग्स का मतलब होता है सीजन, SEASON, सीजन मीन्स होता है ऋतु. अभी स्प्रिंग वर्ड को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग मीन्स होता है वसंत ऋतु, सीजन होता है. और इस सीजन के बारे में और राइटर क्या करे कि लॉस्ट मीन्स होता है खो जाना. लास्ट मीन्स क्या होता है, खो जाना. मीन्स ऐसे लोग
जो स्प्रिंग मीन्स जिनका बचपन जो है, स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड, लास्ट ऑफ चाइल्डहुड, CHILDHOOD, लास्ट ऑफ चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन खो जाना। स्टोरीज ऑफ STORIES, स्टोरीज ऑफ लास्ट ऑफ चाइल्डहुड, that is the meaning of the title Last Spring. And the writer want to say that in India there is so many children that they can't get properly food, proper education and proper standard of living. Then there is too much poverty, they are living under the poverty. That's why she has given the topic Last Springs. So this is the about the topics. Last Springs मीन्स होता है बचपन की जो फैसिलिटीज हैं, जो बच्चे को मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल रही हैं। So the writer has given the title Last Spring. And Anish Jung, she is a lady writer, a prominent writer. She is also journalist. Journalist कहते हैं पत्रकार को। And her essays are heart touching essays. उनके ऐसे जो हैं वो हार्ट को टच करने वाले हैं, साधारण जनता की भावनाओं को टच करने वाले हैं। इमोशनली व्हाट इज रियलिटी, शी हैज प्रिवेल्ड रियलिटी इनटू हर एसे ऑफ द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपुल हैज बीन गिवन बाय द अनीश जंग। सो हियर द राइटर से दिस इज द स्टोरी अबाउट द SAHEB, Sahib. This is the first character of the story. Sahib is the first character of the story to whom the writer is telling about. Now I will tell you the summary of the lesson first, and then I will explain for you the hard word and also explanations of the lines, so that you may understand the lesson completely and you can answer. So Sahib is a boy. He is a boy of under 10, UNDER, under 10 years. He lives in Simapuri, SEEMAPURI. अब सीमापुरी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सीमापुरी जो है ये आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली है, दिल्ली का आउटर पार्ट है, जहाँ पर ये साहिब नाम का लड़का राइटर से मिलता है, लेखिका से मिलता है, अनीश जंग से मिलता है। अब ईच मॉर्निंग लेखिका जो है एवरी मॉर्निंग विजिट मिस्टर साहिब, बट वन डे शी वाज सरप्राइज टू हिम दैट ही मिस्टर साहिब इज ए रैग पिकर्स, RAGPICKERS। रैग पिकर्स मीन्स होता है कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाला, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाला। समथिंग्स आप लिखेंगे गेदर द डम्प, DUMP GETHER, गेदर द डम्प, DUMP डम्प्स, जो भी डम्प्स को गेदर करता है। बट उसकी एज क्या है, उसकी एज जो है वो 10 ईयर से भी कम है, और वो इनहेबिटेंट्स कहाँ का है, सीमापुरी का है। सीमापुरी के बारे में हमने आपको बताया कि इट इज सिचुएटेड आउटर पार्ट ऑफ द दिल्ली, ये दिल्ली के आउटर पार्ट का स्थान है। और राइटर्स क्या है, राइटर्स लिव्ड इन हर बंगलो, बट every morning, early in the morning, she met to Sahib, and it was the surprise of the Anish Jung that why the Sahib, whose age is going to school, seeking education, playing, all these things are into the main features of the childhood, but why he was searching something in the garbage, what is the reasons? इट वॉज, राइटर यहाँ पर सर्च करते हैं जैसे ही वॉज सर्चिंग समथिंग लाइक गोल्ड। गोल्ड मीन्स होता है सोना डियर स्टूडेंट। वो सोचती है कि शायद ऐसा, वो ऐसे सोच रही हो कि वो गार्बेज में कुछ चीज ऐसे सर्च कर रहा है कि जैसे कुछ गोल्ड हो, बट यहाँ गोल्ड का अर्थ मेटल से नहीं होगा, यहाँ पर गोल्ड का अर्थ होगा कि उसे एक कॉइन्स भी मिल जाएगा या कुछ और भी प्रीशियस थिंग्स मिल जाएंगे जिसको, जो उसके लिए एनफ होगा। तो राइटर्स उससे आस्क करते हैं कि डियर साहब, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑथर टू द साहिब। तो साहिब से वो अमेज्ड होते हैं, सरप्राइज होते हैं। तो साहिब बताता है
कि स्कूल मुझे अपनी लिविंग बीइंग्स सर्च करनी है, अब मेरी लिविंग बीइंग्स जो है वो गार्बेज पर डिपेंड्स है, तो हम स्कूल के बारे में सोच ही क्या सकते हैं। मीन्स जब हम लोग अंडर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैं, जिसे अपनी जीविका को सर्च करने के लिए टू मच वर्क हार्ड करना पड़े, उसके लिए जो है वो अन्य किसी चीज क्या डेवलपमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं सकता है। फर्स्ट थिंग से होता है। और सेकंड, आपका गोल्ड वर्ड्स जो है ये स्टोरी में बार बार आएगा राइटर से यहाँ, बट गोल्ड का मतलब मेटल से नहीं होगा, गोल्ड का मतलब होगा कि टू सर्च देयर लिविंग लाइवहुड। अब राइटर्स को साहब की तरह नेक्स्ट प्रोमिनेंट फीचर जो राइटर साहब को बताती है, साहब से आस्क करते हैं तो साहब उसको बताता है कि देयर इज नो स्कूल इनटू हर नेबरिंग्स, इफ शी वुड ओपन वन देन ही वुड कम टू स्टडी। On the second day, the writer met again to the Sahib, and there is a large number of children. They are also searching something into the garbage. इस तरह से मोस्टली बच्चे होते हैं जो साहिब की एज के होते हैं, जो सीमापुरी में रहते हैं, बट ये आए कहाँ से हैं? From where they have come, मीन्स ये ढाका से आए हैं, DHAKA ढाका। सो ढाका का मतलब क्या होगा? आई विल टेल यू अबाउट ढाका। ढाका इज ए DHAKA, ढाका इज ए कैपिटल ऑफ CAPITAL, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश BANGLADESH। तो साहिब जो है वो जो इनहेबिटेंट है वो ढाका का है। साहिब ने इस बारे में अपनी मदर से, अब वो अथर को डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरी माँ ने जो स्टोरी बताई है कि ढाका को हम लोग छोड़ करके क्यों यहाँ पर आए हैं, सीमापुरी में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि देयर इज ए टेम्पेस्ट, बार बार डिवास्टिंग टेम्पेस्ट आता था